Good morning, students. How are you all? Hope you all are very good. So, today I am going to take a very interesting topic, that is helping verbs or auxiliary verbs. So, basically, this topic will help you a lot while doing tenses. Okay? So, let's start. What are helping verbs with examples? So, how to use helping verbs or auxiliary verbs in tenses? So, हम examples के थ्रू देखते हैं. A helping verb, also known as auxiliary verb. So, as I told you before, कि helping verb को हम auxiliary verbs भी कह सकते हैं, is used with a main verb to help express the main verb's tenses, mood और voice. So ये main verb के साथ भी होता है क्या express करने के लिए, verb का tense express करने के लिए, mood express करने के लिए and the voice. So basically अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, tenses के लिए पढ़ रहे हैं, right? So the main helping verbs are to be, to have and to do. So these three things, to be and to have and to do, ये तीनों बेसिकली क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ऑल राइट, और यू कैन से एन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑल राइट, सो टू बी, टू हैव एंड टू डू. see this table. Auxiliary verbs mainly divided into two parts, right? Primary auxiliaries और the next is modals. देखो हेल्पिंग वर्ब्स को एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इसलिए कहते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स जो हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब है, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. सो यही एक रीज़न होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो स्टूडेंट्स को, रीडर्स को, तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाने लगा, just for convenient. All right, so basically auxiliary verbs are two types, primary auxiliaries and the modals. So let's see the primary auxiliaries first. So be verbs, be जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, to be में क्या आता है, am, is, was, are और were. All right, do verb में does, do and did, and have verb में to have में has, had और had. All right, so and the next is modals. So modals is basically हम यहाँ modals पढ़ेंगे, modals का एक सेपरेट वीडियो होगा, एक सेपरेट टॉपिक है, तो इन्हें हम सेपरेट ही पढ़ेंगे. तो modals बेसिकली बहुत सारे होते हैं, आपको यहाँ पे शो भी किया हुआ है. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड कुछ सेमी modals होते हैं लाइक नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू. ऑलराइट, बट इन टेंसेस हम सिर्फ दो modals का यूज करेंगे, which is will और shall only. Alright, so let's see first की modals verbs होते क्या हैं. So helping verbs that perform other specific tasks to further modify the action or meaning of the main verb are called modal verbs. Basically एक स्पेसिफिक वर्ब होता है, एक परफॉर्मेंस होती है जो हमारे एक्शन को फर्दर मॉडिफाई करने के काम आती है, उसे हम मोडाल्स कहते हैं. राइट, सो यहाँ पे जैसे हम दो ही मोडाल्स का हम यहाँ यूज करेंगे, विल और शेल का. कैन, कुड, मी, माइट और वुड का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, केवल विल और शेल का हम यहाँ पे यूज करेंगे. ऑलराइट, तो कोई भी एक्शन होता है उसे मॉडिफाई करने के लिए, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, फर्दर मॉडिफाई करने के लिए हम मोडाल्स का यूज करते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी what is helping or auxiliary verbs are here. So also called helping verb. So auxiliary verbs को हम helping verbs भी कहते हैं. They have no meaning on their own. They are necessary for the grammatical structure of a sentence. See, if you want to make a meaningful sentence, वहाँ पे आपको helping verb और auxiliary verb की नीड पड़ेगी. एक grammatical structure बनाना होता है जब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है. हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस तभी बनता है जब ये तीनों चीजें साथ में होती हैं. राइट, सो जो वर्ब है हमारा, तो वर्ब तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट वर्ब हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते.
Alright? But they do not tell us very much alone. We usually use helping verb with main verbs. So ऐसा नहीं है कि हमेशा ये alone होते हैं. Helping verbs के साथ कुछ main verbs भी होती हैं जो usually helping verbs के साथ आती हैं. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही helping main verbs आती हैं. Suppose जैसे मैंने आपको previous video में एक example दिया था, girls were singing. Alright? So हम girls singing भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो वर है, वर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब हो गया वो हो गया सिंगिंग. ऑलराइट, सो दे हेल्प द मेन वर्ब विच हैज द रियल मीनिंग. बेसिकली दे हेल्प, वो हेल्प क्या करती हैं, मेन वर्ब को हेल्प करती हैं जिससे एक रियल मीनिंग निकलकर बाहर आता है. गर्ल सिंगिंग, जैसे हम बोल रहे हैं गर्ल सिंगिंग, लड़कियां गाना गा रही, राइट. अब वो कब गा रही हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, तो वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट. तो जब हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे यूज हो जाता है तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं कि बेसिकली जो टाइम है वो कब का है, राइट. द गर्ल्स वर सिंगिंग, लड़कियां गाना गा रही थी. तो वो जब हमने यूज किया तो वो इंडिकेट करता है पास्ट को. तो दैट्स वाई हम वहाँ पे समझ पाए कि ये काम क्या कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है. ऑलराइट, कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर्क्स टुगेदर विद द मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ कैसे वर्क होता है वो देखते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. शी इज लिविंग. सो हियर द वर्ड शी इज सब्जेक्ट. यहां पे शी क्या है, सब्जेक्ट है. इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड लिविंग, लिविंग हमारा मेन वर्ब है. ऑलराइट, तो शी इज लिविंग, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. ऑलराइट, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पे है. आई हैव, सॉरी उसमें हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है फर्स्ट सेंटेंस में. नेक्स्ट इज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. सो हियर आई इज सब्जेक्ट, have is helping verb and finished is main verb and my verb is a object. Alright, so finish हमारी verb है, इसके साथ हमने ed लगा दिया past tense करने के लिए. Alright, so I have finished. तो आप देख रहे हैं यहाँ जो main verb है, main verb के साथ हमने helping verb लगाया जस्ट कि ये शो करने के लिए बेसिकली टाइम कब बता रहे हैं. जैसे she is living, अब इस यहाँ पे यूज हुआ है तो अंडरस्टूड है कि जब इस यूज हुआ है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. लिविंग, शी इज लिविंग. ऑलराइट, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है. एंड आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड पास्ट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है तो हमने यहाँ पे हैव का यूज किया है. अब कुछ एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट और पास्ट में. एम, वॉज और इज कब कब आप किस किस के याद साथ यूज कर सकते हो. तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कुछ पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ऑलराइट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में, बट अभी आप ये समझिए. आई के साथ देखिए, आई क्या होता है, एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा एम के साथ यूज होता है. मतलब आई को केवल कौन पसंद है, एम पसंद है. इसके अलावा आई को कोई यहाँ पे पसंद ही नहीं है. तो जब भी आई आएगा मतलब एम के साथ आया ही आएगा. एम को कोई पसंद नहीं है, एम सिर्फ आई के साथ आता है और किसी के. हम आपने कभी सुना है यू एम, शी एम, ही एम, नहीं सुना होगा ना. तो हमेशा एम किसके साथ आता है, आई को, क्योंकि वो आई को बहुत लाइक करता है. ओके, सो प्रेजेंट में हम एम का यूज करेंगे एंड पास्ट में हम आई के साथ वॉज का यूज करेंगे. You are in present time, you are a good girl, right. और past में अगर हम बोलेंगे तो you के साथ हम verb का यूज करेंगे. Alright, she is, she was, he is, he was, it is, it was. तो she हम basically females के लिए यूज करते हैं, he male के लिए and it हम यूज करते हैं neutral के लिए. Alright, so like it is raining. तो raining हमारा मेल और फीमेल तो है नहीं रे,
तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे. सो वी आर प्रेजेंट में एंड वी वर पास्ट में, दे आर एंड दे वर. ऑलराइट. अब कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जैसे बी के जो बेस फॉर्म्स हैं, हैव के जो बेस फॉर्म्स हैं और डू के जो बेस फॉर्म्स हैं वो हम देखेंगे. बी इज एम आर, वॉज, वर एंड बीन. अब देखिए जब इज एम आर का हम यूज करेंगे तो वो हमेशा किसके लिए होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, राइट, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम यूज करेंगे. ऑलराइट. तो हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज के साथ और इज एम आर के साथ और वॉज वर के साथ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, राइट. सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट के लिए, तो वॉज वर हम कब यूज कर रहे हैं, पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं. अब हैव में देखिए हमारे हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है. हैड के साथ भी हमारे ना ये जो है मतलब अभी ना सेकेंड फॉर्म को यूज किया है हमने और हैड में हमने थर्ड फॉर्म को. डू, डज, डिड और डन, ये कुछ इसी तरीके से होंगे. ऑलराइट. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. हमारे जो भी ऑक्सिलरीज वर्ब हैं उनके एग्जाम्पल्स, तो आपको ईजिली आपको अंडरस्टूड होगा. सो एम, एज आई टोल्ड यू कि एम को आई बहुत पसंद है, ही लाइक्स वेरी मच, तो आई के साथ आया आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन. इज ही इज अ ग्रेट ऑल राउंड प्लेयर. आर यू के साथ आया है, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न. सो वॉज, सो ही के साथ हम वॉज का भी यूज करते हैं बट इन पास्ट. ही वॉज इलेक्टेड बाय अनएनिमस वोट. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद अ बॉल. अब हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड के भी हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस. Has, he has bought some tropical fruits. So यहाँ पे हम has का यूज किया, has के साथ हमने क्या यूज किया, यहाँ पे bought यूज किया. Alright. Our guests have arrived. Had not seen him for 15 years. So basically has और have के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे क्योंकि ये परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में यूज होता है और हमेशा परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. ऑलराइट. डू, आई डू. सो डू, डज और डिड ये हमारे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में यूज होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कह सकते हो यूज होता है. सो डू, आई डू नॉट फील लाइक गोइंग आउट टू नाइट. सो आई के साथ हमने, सो ये देखो आई हमारा सिंगुलर तो है बट ये ध्यान रखना कि आई के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, डू का, राइट. यहाँ पे जो डू है वो प्लूरल के साथ यूज होता है बट आई के साथ भी हम यहाँ पे डू का ही यूज करेंगे. ऑलराइट. आई डू नॉट फील लाइक गोइंग आउट टू नाइट. सो दे प्लूरल है तो दे के साथ भी हम सी का ही यूज करेंगे. Alright, there are some technical issues. Sorry for that. Okay. Does your job fulfill your expectations? Did you have a nice holiday? So यहाँ पे does और did हम interrogative sentences में भी यूज कर सकते हैं. देखिए मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी कि does और did जब हम यूज करते हैं तो yes और no के आंसर्स ही हमें मिलते हैं. जैसे does your job fulfill your expectation, क्या आपकी जॉब जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रही है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, yes और no में. मीन्स yes और no. अगर नहीं कर रही है तो no और कर रही है तो yes. Did you have a nice holiday? Yes or no. All right. So I hope आपको ये helping verb अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो in our next video we will start the first tense, that is present indefinite tense. All right. So take care. Thank you.